Dear students, welcome to our channel. Today we'll discuss about leader of opposition in the Lok Sabha, particularly जब भी सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, बजट सेशन अभी चल रहा था, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑलवेज इन न्यूज़ फॉर स्टार्टिंग न्यू debates, new discussions, always for parliamentary disruptions, for allegation of and counter allegation on the government, and government is counter releasing the leader of opposition. This is always in news and very important for your exam preparation. So today we will cover different aspects of leader of opposition, history of leader of opposition in India, and everything. So let's begin. The leader of opposition is a vital pillar of Indian democracy, if you can say so, ensuring that the government remains accountable and that the voice of the minority is heard in the legislative process. He is often described as, he or she, whoever it may be, is often described as prime minister, shadow prime minister. Once on the one side you have leader of the house, who is prime minister of India, and on the counter side it is leader of opposition. So in British parliamentary language, British convention, the leader of opposition is called shadow prime minister. Let's see origin and meaning of this constitutional position of leader of opposition. Leader of opposition is the leader of largest opposition party in the Lok Sabha. लोक सभा की ही हम बात कर रहे हैं. तो जो भी अपोजिशन में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, जिस अपोजिशन पार्टी के पास लार्जेस्ट स्ट्रेंथ होता है, उसके लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन कहा जाता है. उसकी रिक्वायरमेंट हम देखेंगे कि हम उसे रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे, वो एक स्टैट्यूट के द्वारा होता है. अभी के लिए आप जान लीजिए कि द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इज कॉल्ड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, यानी दिस पोस्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट अ स्टैट्यूटरी पोस्ट recognized by parliamentary law. Parliamentary law के द्वारा इसका recognition है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है. तो so most important thing is it is statutory in nature. It is statutory in nature. Next देखते हैं हम लोग ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की बात हम कर लेते हैं. इनिशियल ईयर्स की अगर बात करें 1950 से लेकर 1969 तक, डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, देयर वाज नो अपोजिशन, सो देयर वाज नो फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन. जब जीवी मावलंकर जो फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उनके पास जब लीडर ऑफ अपोजिशन की बात आई तो उस टाइम पे कांग्रेस का डोमिनेंस था. ओनली 15-16 लीडर्स वर देयर इन द अपोजिशन, सो ही डिडंट रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन एज सच, साइटिंग आर्टिकल 100 विच रिक्वायर्स अ कोरम ऑफ 10%. 10% रिक्वायरमेंट इज कोरम, हम लोग आगे देखेंगे. 10% का कोरम का उन्होंने जिक्र किया, जो आर्टिकल 100 कहता है कि टू फॉर्मली ऑर्गेनाइज टू इनिशिएट द सेशन, 10% requirement is there, that 10% members should be absent. The same 10% formula he required for recognizing leader of opposition, 10% rule, Maulankar rule it is called. It is not, again it is not mentioned in the constitution. It is Maulankar formula which is said. So it is statutory provision. It is also not statutory provision, but it is based on convention, not rule. It is based on convention. It is not recognized in by the law also. First time it was recognized in the year of 1969. जब कांग्रेस का डोमिनेंस डिक्लाइन होने लगा, कांग्रेस का वर्चस्व खत्म होने लगा, अपोजिशन में स्ट्रेंथ बढ़ने लगा, तो 1969 में पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया. अपोजिशन स्टार्टेड बिकमिंग स्ट्रांग, सो लीडर ऑफ अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड. अब रिकॉग्निशन और फिर स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा गाइड होना, तो 1977 में जाके आपको लॉ बनता है विच इज द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977. This was the first statutory recognition of leader of opposition in the parliament. 10% rule, again, it is not covered under this rule. This act, 1977 act, this is based on Maulankar formula.
तो कौन रिकॉग्नाइज करता है? हु रिकॉग्नाइजेस लीडर ऑफ अपोजिशन? द स्पीकर ऑफ द हाउस. द स्पीकर ऑफ द हाउस हैज द अथॉरिटी टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लीडर ऑफ अपोजिशन. आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की जब बात हम करते हैं तो उससे पता चलता है कि क्या रैंकिंग है लीडर ऑफ अपोजिशन की. इन द ऑफिशियल इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, द प्रोटोकॉल, द व्हाट इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस? इट इज अ प्रोटोकॉल लिस्ट used to determine rank and sitting at the state functions. यानी कोई भी ऑफिशियल फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं. किसको कैसे बिठाना है, क्या प्रोटोकॉल होगा उनका, किसको आगे बिठाना है, किसी को किसके बगल में बिठाना है, वो जो ऑर्डर होता है इसी वजह से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की एक लिस्ट जारी की जाती है जो होम मिनिस्टर के साइट पे आपको मिल जाएगा. तो उस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन इज रैंक सेवेंथ रैंक पे उसको रखा गया है. यानी और सेवेंथ रैंक पे और भी कई सारे लोग हैं. सेवेंथ रैंक एक साथ दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन को भी, कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स को भी. चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो लिस्टेड एज सेवेंथ रैंक विद इन द स्टेट. द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी भी रैंकिंग क्या है? सेवेंथ है. तो लीडर ऑफ अपोजिशन इज रैंक्ड सेवेंथ इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. सो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत रखता है. और अगर स्टेटस की बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन एंजॉयज द रैंक, स्टेटस एंड फैसिलिटीज ऑफ अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर. उसके पास सैलरी, उसके पास फैसिलिटीज, सब कुछ एक यूनियन मिनिस्टर के बराबर होती है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात अगर आप करें तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द मेन रोल ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि सिर्फ आप सरकार को क्रिटिसाइज मत कीजिए, सिर्फ उनमें कमियां नहीं निकालिए, बल्कि आप एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दीजिए, एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव भी दीजिए कि आपको ये ना करके ये करना चाहिए था, आपने इसको छोड़ दिया, आप इस तरह से करते तो बेहतर हो सकता था, बेहतर पॉलिसी हो सकती थी. यानी आपको ऑल्टरनेटिव भी सजेशन में देना है. तभी आप कहेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की हम बात कर रहे हैं. फिनेंशियल ओवरसाइट थ्रू द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स इसमें होते हैं. और इसका जो लीडर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिशन की तरफ से होता है. तो फाइनेंशियल ओवरसाइट आप कर सकते हैं थ्रू पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कि फिनेंशियल जो वो खर्चे किए हैं उसको आप स्क्रूटनी कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं कि एक एक रुपया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो निकला है दैट इज एज पर द पार्लियामेंट्री लॉ. जो पार्लियामेंट में बजट में जो पास हुआ है, पार्लियामेंट से जो अप्रूवल हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपने पैसा निकाला है. तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और अगर आप देखेंगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंटमेंट्स में, कई सारे अपॉइंटमेंट्स में पार्टिसिपेट करता है. फॉर इंस्टेंस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन अलॉन्ग विथ प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलके अपॉइंट करते हैं. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, द लोकपाल, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन, और अब एक नया जो आ गया है आपका इलेक्शन कमीशन भी. इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, इसके भी अपॉइंटमेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर 10% किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है तो ऑफिशियली नो पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन, लाइक इट हैपेंड इन 2014 एंड 2019. 2014 and 2019 there was no officially recognized leader of opposition. तो फिर इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो सीबीआई डायरेक्टर केस 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया, द लीडर ऑफ, जो अपोजिशन में जितनी पार्टीज है उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा shall be considered as leader of opposition for these appointments purpose, even if that person is not officially recognized by the speaker. But in appointment of these important posts, you have to consult the leader of the party having highest strength in the Lok Sabha. तो ये आपको क्लियर है. इलेक्शन कमीशन भी उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन
पार्टिसिपेट करता है। 10% रूल, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है कि लोकसभा में 543 सीट है, तो जिस पार्टी को भी 55 सीट होगा उसी मिनिमम 55 सीट्स रिक्वायर्ड है, तभी आप उसको स्पीकर जो है रिकॉग्नाइज कर सकता है। मावलंकर फॉर्मूला है, अगेन इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड। किसी को भी अगर नहीं होता है तो कोई एलओपी रिकॉग्नाइज नहीं होगा। अपॉइंटमेंट्स वाली बात मैंने आपको बता दी, 2014-19 में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद वो चीजें हुई। सिग्निफिकेंस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या सिग्निफिकेंस है लीडर ऑफ अपोजिशन का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एसेंशियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेक्स एंड बैलेंस की बात करता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस हो। उस चेक एंड बैलेंस का पार्ट है आपका लीडर ऑफ अपोजिशन, हु कॉन्स्टेंटली कीप आई ऑन ईच एंड एवरी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो एसेंशियल चेक एंड बैलेंस के लिए आपका लीडर ऑफ अपोजिशन इज वेरी मच एसेंशियल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथन करता है, ये एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाता है, ये एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल बनाता है। क्वेश्चन आवर में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन का ये ड्यूटी है, ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डिबेट्स एंड डिस्कशन हो, प्रॉपर एग्जीक्यूटिव के लोग आंसर करें किसी भी सवाल का प्रॉपर तरीके से। तो अगर ये सब हम देखेंगे तो आपको लगेगा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैसे लीडर ऑफ अपोजिशन स्ट्रेंथन करता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेस डिसेंट, डिसेंट मतलब कि गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से आप अग्री नहीं कर रहे हैं, और एक ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। और इंस्टीट्यूशनल तरीका क्या है, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सब एक की है, ये सब टूल्स हैं जिसको यूज अपोजिशन के लोग कर सकते हैं। तो ये इंस्टीट्यूशनलाइज फॉर्म ऑफ डिसेंट है। मेजोरिटेरियनिज्म को ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि जो लोग भी सरकार में जीत कर आए हैं वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइनॉरिटी व्यू कौन है, तो जो लोग अपोजिशन में बैठे हैं, जिनकी सरकार नहीं है, उनको वो बहुमत नहीं मिला है, तो मेजोरिटेरियन तरीके से सरकार ना चले, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि माइनॉरिटी के व्यू को रखा जाए, मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाए, इसको प्रिवेंट करता है। अगेन यू कैन से दैट इट इज अगेन अ चेक एंड बैलेंस की बात हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये समरी ऑफ रिवीजन, जिसमें आप की पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, जिसमें क्या क्या आपको याद करने की ज़रूरत है। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। स्टैट्यूटरी पोस्ट अंडर 1977 एक्ट, 10% रूल अप्लाइज, ये मावलंकर फॉर्मूला से चलता है। जीवी मावलंकर फर्स्ट स्पीकर ऑफ द हाउस 1952 इलेक्शन के बाद। कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है 1977 एक्ट के द्वारा। Key role in anti-corruption and oversight appointments like CVC, CBI Director, Chief Information Commission, Election Commission of India. So again, these all, by all these, you can say that leader of opposition is a vital pillar of parliamentary democracy for ensuring accountability. तो इतना ही है लीडर ऑफ अपोजिशन में। फिर से आपको अगले वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।